हम्म, एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करना है। आपके पास इसका स्क्रीनशॉट है, क्वेश्चन पढ़िए। मैंने आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया था। श्रेयांश, उसमें से देख करके पढ़िए क्या क्वेश्चन था, दोबारा बताइए। जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है उसको देखिए। क्वेश्चन सी। The dogs are special because they serve. They search. They assist in research without. They assist in research without. वो रिसर्च में असिस्ट करते हैं बिना, बिना किसके? रिसर्च में हेल्प करते हैं बिना किसके? विदाउट क्या? वो देखना है हमें। तो fast becoming indispensable tools for biologists, according to Amy Hart, Associate Director and co-founder of Working Dog for Conservation Registry, Fox, Montana. Over the last few years, so many new conservation dog projects have sprung up that Hurt can no longer keep track of them all. Her organization's dogs and their handlers are fully booked to assist field researchers. Dogs have such phenomenal sense of smell, explained Sam Wasser, director of Center for Conservation Biology at the University of Washington in Seattle. He has worked with cat detection dogs since scientists have been using conservation canines in their research. These dogs have enabled them to non-invasively access vast amount of genetic and physiological information. Okay, non-invasively. तो विदाउट इन्वेजन होना चाहिए वहां पर। वो रिसर्च में हेल्प करते हैं विदाउट इन्वेजन। ये इसका आंसर होना चाहिए। इन्वेजन मतलब क्या होता है? इन्वेजन अटैक होता है, ठीक है। इन्वेजन बना है इन्वेड से। इन्वेड का मतलब अटैक करना। सी है, सी का आंसर चेक करते हैं हम। देखिए, हाँ ठीक है, विदाउट इन्वेजन आ गया। तो वो हेल्प करते हैं बिना अटैक के। नॉन इवेसिवली लिखा है ना वहां पर, तो इवेसिवली बना है इन्वेजन से। नॉन का मतलब होता है बिना। फॉर एग्जाम्पल, नॉन अल्कोहलिक, दैट मीन्स जिसमें अल्कोहल ना हो, राइट। इन द सेम वे नॉन इवेसिवली दैट मीन्स विदाउट इन्वेजन। अंडरस्टूड? अब डी क्वेश्चन हमारे पास में, द आइडियल डिटेक्शन डॉग। द आइडियल डिटेक्शन डॉग, इसको कंप्लीट करना है हमें। तो पहले पहुंचना पड़ेगा आइडियल डिटेक्शन डॉग तक। दिख गया होगा आपको? दिख रहा है स्क्रीन पर? जी। Is extremely energetic. With an excessive play drive.
Extremely energetic with an excessive play drive. Let's check the answer. Question number D. Yes, is extremely energetic with an excessive play drive. Okay. अब अगला क्वेश्चन रिया को पढ़ना है। रिया पढ़ना, क्वेश्चन ई पढ़िए। रिया, क्या लिखा हुआ है? The dogs expect dash as a reward of their hard work. यस, द डॉग्स एक्सपेक्ट, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो देखना है हमें। एज अ रिवॉर्ड ऑफ देयर हार्ड वर्क, अपने हार्ड वर्क के रिवॉर्ड के बदले में, मतलब बदले में क्या उनको चाहिए होता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये देखना है। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? एक्सपेक्ट। हाँ, we have find out the answer from this paragraph itself, which is in front of you on the screen. Ball game. Yes. So, can you complete? Can you make the complete sentence? Can you Dogs read it for us? a ball yeah. reward of detection, sample detection. Okay. Right. Okay, let's check the answer. They expect a ball game as a reward for sample detection. Question E. Question E. Yeah, a ball game. Okay. Now the question is, गौरी आपको पढ़ना है question F. पढ़ी, क्या लिखा हुआ है? Dash of these dogs make it difficult to keep them as pets. तो इन डॉग्स को एक पेट की तरह पालना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या चीज मुश्किल बनाती है? इन डॉग्स को एक पालतू पशु की तरह पालना मुश्किल क्यों होता है? क्या चीज उसको मुश्किल बना देती है? ये देखना है हमें। तो लेट्स सी। Yes, Gauri, find out the answer from this paragraph. Obsessive high energy personalities. Obsessive high energy personalities. Question F. Okay, हर्षित जी पढ़ना है आपको। These dogs find career in. हर्षित, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, इसका आंसर देना है ऊपर से। These dogs find career in. Sir, conservation research. Yes, these dogs find career in conservation research. G. Yes, conservation research. H. The word euthanasia means. The word euthanasia means. हाँ,
हाँ, इसका मीनिंग गैस करना है। श्रेयांश, आपको गैस करना है इसका मीनिंग क्या हो सकता है, यूथनेशिया का मीनिंग। यस, पता नहीं मुझे। सर किसका मीनिंग पूछा आपने? यूथनेशिया, EUTHANASIA। गैस करना है मीनिंग आपको बस इसका। पहले देखिए ये है कहाँ पर, पैराग्राफ में कहाँ है वो लाइन पढ़िए पहले आप। सर मिल गई वो तो। पढ़िए, इसको रीड कीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। As a result, they frequently find themselves abandoned to animal shelters, facing euthanasia. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, किस चीज की रिजल्ट की बात चल रही है यहाँ पे सर ऊपर? हाँ, मतलब अधमरा। अभी अभी ये बताइए, यहाँ पे उसने कह रहा है एज अ रिजल्ट, तो रिजल्ट किस चीज का है पहले मुझे बताइए। ऊपर, इससे ऊपर होगा, किस बात की रिजल्ट की बात चल रही है वो इससे पहले होगी। तो एज अ रिजल्ट से पहले की लाइन पढ़िए, पढ़िए अर्षित, एज अ रिजल्ट से पहले की लाइन पढ़िए। The obsessive high energy personalities of detecting dogs also make them difficult to maintain as pets. बस रुक जाइए। तो कह रहा है कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत एनर्जेटिक होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा भागने दौड़ने वाले बहुत पावरफुल डॉग्स होते हैं, डिटेक्शन डॉग्स। तो इनकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से इनको आप एक पेट की तरह नहीं पाल सकते, क्योंकि इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। ठीक है, हम पेट डॉग किसको रखते हैं, जो कि जिसको हम अपने आप आसानी से हैंडल कर सके, और इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। ओके, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इनको कहाँ पर अबैंडन का मतलब छोड़ दिया जाता है। इनको कहाँ छोड़ दिया जाता है बताइए? इनको अबैंडन किया जाता है, कहाँ पर अबैंडन किया जाता है, तो पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। एनिमल शेल्टर्स लिखा हुआ है सर। एनिमल शेल्टर्स में छोड़ दिया जाता है। और फिर क्या फेस करते हैं वहां पर वो, किस चीज का सामना करते हैं वहां पर वो, यूथनेशिया का। यूथनेशिया। अब देखिए क्या टॉर्चर टाइप्स मतलब मीन्स तंग करना, टॉर्चर या फिर डिप्रेशन, या फिर अगर ये होगा या फिर तो या फिर इसका बिल्कुल अपोजिट चीयरफुल होगा। ओके ओके, टॉर्चर करना, तंग होना, मतलब ये तंग करते हैं या इनको ये खुद तंग हो जाते हैं? खुद हो जाते होंगे। सर खुद तंग हो जाते हैं। ओके, एनिमल शेल्टर में रहने के बाद में ये खुद तंग हो जाते होंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं, देखिए यूथनेशिया जो वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं हम। ओके, जैसे इसको ब्रेक करेंगे हम, ईयू, जो शुरू में यू है ना, ईयू, यूथनेशिया के पहली दो लेटर्स क्या है, ईयू, है कि नहीं? ठीक है, तो सर ईयू का हाँ, ईयू का मतलब होता है अच्छा। ऐसी कोई चीज जो अच्छी फील करे वो उसके शुरू में यू आ जाता है आमतौर पे, ये रूट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है यूलॉजी, तो यूलॉजी जो होता है वो प्रशंसा गीत होता है, किसी की तारीफ में किया गया गीत, यूलॉजी, तारीफ को कहते हैं यूलॉजी, EULOGY, यूलॉजी। तो यूलॉजी क्या होती है, तारीफ होती है, तारीफ सुन के अच्छी लगती है। तो ओके, और उसके बाद में ईयू के बाद में कौन से लेटर्स हैं, अगले 5 लेटर्स बताइए कौन कौन से हैं? थैना।
थैना, ओके। आपने कोई मूवी देखी है जिसमें इस नाम का कोई कैरेक्टर हो? अभी हाल ही में एक थैनोस साल। है सर, थैना तो थैनोस, नहीं। हाँ थैनोस, थैनोस, थैनोस। यस, थैनोस। थैनोस क्या करता है? और आधी दुनिया को मार देता है। तबाही। मार तबाही। देता है, मार यूनिवर्स देता है। को। वो मारता है। तो थैनोस तरह क्या है, किलर है एक तरह से। थैनोस कौन है? सर्कुलर है। किलर है, ठीक है। तो जिस वर्ड में ये रूट होगी थैना, थैनो, उसका मतलब मौत से होता है। किससे होता है? मृत्यु से, डेथ से होता है। अंडरस्टैंड? जिस यस वर्ड में सर। थैना, हाँ, उसका मतलब होता है मौत से। जैसे फॉर एग्जांपल थैनेटोफोबिया, एक वर्ड होता है थैनेटोफोबिया, क्या मतलब होगा इसका? थैनेटोफोबिया का फोबिया मतलब डर होता है, सर मरने का डर। मरने का डर। ओके, राइट। अब इस वर्ड पर आते हैं हम, यूथनेशिया। यू का मतलब अच्छा, और थैना का मतलब मौत। तो यूथनेशिया का मतलब क्या हुआ? यूथनेशिया का मतलब क्या हुआ फिर? अच्छी मौत हुआ कि नहीं, बताइए? यस सर, अच्छी मौत। यस सर। अच्छी मौत, सुख, सुख मृत्यु कह सकते हैं इसको हम। तो यूथनेशिया का मतलब होता है सुख मृत्यु। अब समझ लीजिए, देखिए, अभी काफी डिबेट चलती है यूथनेशिया के ऊपर, यूथनेशिया को लेकर काफी सारी डिबेट चलती है पूरी दुनिया के अंदर। ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता, ठीक है, और वो चल फिर भी नहीं सकते, एकदम अपाहिज बन के पड़े रहते हैं बिस्तर पे। वो अपनी उंगली तक नहीं ला सकते, अपने सर तक को नहीं ला सकते, बस पड़े रहते हैं। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को उनकी इच्छा से मृत्यु दे देनी चाहिए। कोई इंजेक्शन लगा दो उनको, कोई गोली दे दो, और वो आराम से बिना तकलीफ के मर जाएं, ठीक है। तो ऐसी मौत को हम कहते हैं यूथनेशिया। जैसे एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की 2010 के आसपास, 11 के आसपास, गुजारिश के नाम से, ठीक है। तो उसमें वो कोर्ट से यही गुजारिश करता है कि उसको मौत दे दी जाए किसी तरह से। वो अपाहिज हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको हम सुख मृत्यु कहते हैं, यूथनेशिया। इसी तरह से कोई एनिमल जब अपाहिज हो जाता है, जैसे कोई घोड़ा वगैरह है, उसकी टांग वांग टूट गई मान लीजिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, इंजेक्शन लगाकर या कैसे भी मार देते हैं। तो उसे हम यूथनेशिया कहते हैं। तो यूथनेशिया मतलब पेनलेस डेथ, बिना दर्द की मौत। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? पेनलेस किलिंग। पेनलेस किलिंग। तो इन डॉग्स को कोई एज अ पेट तो पालता नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि इनको मौत दे दी जाती है बाद में, जब एक बार काम निकाल लिया इनसे अपना, और काम निकालने के बाद में इनको मौत दे दी जाती है। कैसी मौत? पेनलेस। अंडरस्टूड? समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, बाकी और बाद में करेंगे हम पैसेजेस, अभी और करने हैं हमें इसको। उस दिन मैंने आपको लेटर टू एडिटर तो समझा ही दिया था, क्यों श्रेयांश? यस सर। ठीक है। और आपने कहा था कि ये पैसेज भी आ रहे हैं, तो पैसेज अभी और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये तो अभी हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वाले ही करे हैं। और भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लासेस में। फिलहाल आज पैसेज में इतना ही कॉम्प्रिहेंशन। अभी मैं आपको जो हमने चैप्टर किया था नेक्सस वाला, उसके कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाने वाला हूँ।
कौन सा पेज था इसका चैप्टर का? सर वो तो शायद हो गया था ना पूरा। नहीं, मैं उसके क्वेश्चन पूछूंगा ना आपसे पैराग्राफ में से। जस्ट तो ये बताइए, आप लोगों ने जो पिछली बार टेस्ट दिया था उसमें कौन कौन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस थे? लास्ट टाइम टेस्ट में किस चैप्टर कौन कौन से चैप्टर्स ने आपको दिए थे? सर एक तो पोयम थी। कौन सी पोएम? और एक 100 ड्रेसेस पार्ट 1 था। हाँ 100 ड्रेसेस। 100 डेजेस की वो पोएम कौन सी थी? वो बॉल वाली थी शायद। हाँ सर द बॉल बॉल। पोएम। ठीक है ठीक है, 100 ड्रेसेस एंड बॉल पोएम। 100 ड्रेसेस एंड बॉल पोएम। तो एक मिनट रुको जरा, मैं अगले टेस्ट के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ चैप्टर। अगले टेस्ट के लिए, हाँ, अगला टेस्ट जो होगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से होगा। किससे? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया सर तीनों पार्ट। हाँ, तीनों पार्ट सिर्फ वही होगा, बस यही होंगे जितने भी इसके पार्ट हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के, उसी में से क्वेश्चन होंगे लिटरेचर में। और बाकी लेटर टू एडिटर होगा, और कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं करता बट हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, जैसे आज किया था उसी तरह से कोई पैसेज हो सकता है। ये 3 चीजों की तैयारी करनी है आपको। एक तो ये चैप्टर तैयार करना है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, और दूसरा लेटर टू एडिटर करना है, और तीसरा आपको करना है पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रैक्टिस करनी है। ओके बस सर। याद रखिए। ओके, सर यस टेल मी। सर किसी दिन आप वो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वाला चैप्टर दोबारा पढ़ा देंगे? आप पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे, क्योंकि काफी सारे चैप्टर्स तो हम कर ही चुके हैं मेरे ख्याल से। हाफ यस एल में सर। जो हाफ एल में आपके जो आ सकता है उससे ज्यादा ही हो चुका है ना अब तक। यस सर बस एक पोयम रह गई है बॉल के बाद वाली। हाँ, तो पोएम कर लेंगे, उसके बाद में तुम्हारा चैप्टर करा दूंगा साइंटिस्ट वाला। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ इसके। तो वन, देखिए, जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे वो यहाँ से है, बिल्कुल लास्ट इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में। वन इवनिंग वाला पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन है, ये 3 लाइनें यहाँ पर इस पेज पर, और बाकी लाइनें अगले पेज पर हैं। अभी मैं अगला पेज भी खोल दूंगा आपको, बट क्वेश्चन सुन लीजिए आप पहले, और आपको याद भी होगा, मैंने आपको स्टोरी पढ़ा रखी है। ऑप्शन दूंगा, यस सर। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन में से चूज करना है आपको। तो द क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द हस्बैंड इलेटेड? व्हाई वाज द हस्बैंड इलेटेड? सर इलेटेड का मतलब खुश है ना? Very happy, very very happy. Okay, now let me give you the options and answer my question. So the question was,
Why was the husband elated? First, because he bought home a necklace. Second, because he got a promotion. Third, because he brought home an invite. Okay, because he brought home an invite to the minister's residence, and he knew that it would make his wife happy. Fourth, because he received an invitation to the minister's residence, and he knew that it would make his wife angry. Sir, C. C, right, correct. The question is for Ria. What was the reaction? Just a minute. From you. First of all, tell me who is you here. You see the line here? He said there is something for you. Who is you? Tell me, सर Ria, वो who is जो you? थी कौन थी? उसका नेम याद नहीं आ रहा याद कीजिए, रिकॉल कीजिए. एक तो उनका नाम, हाँ दोनों नाम उनके एम से हैं. सर मीम और आगे कुछ था पता नहीं तो याद ओके, नहीं आ रहा हस्बैंड समझ का नेम गई क्या था? हस्बैंड का नेम क्या था? उसका भी याद नहीं हस्बैंड आ का रहा नेम था, हस्बैंड का मुझे नेम बस था लॉयजल. इसका लॉयजल, हस्बैंड का नेम था लॉयजल. ठीक है, तो वो हो गई मैडम लॉयजल, श्रीमती लॉयजल. और उनका अपना नेम था वैसे मैटिल्डा. Okay, so you is Matilda. Okay, now let's talk about the question. The question is, what was the reaction from you? You का reaction क्या था? And the options are was very happy. Second option was pleasantly surprised. Was pleasantly surprised. Third option, not the least happy. Least मतलब बिल्कुल भी. Not the least happy.